गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं मिसेस गायत्री सेन पात्रा आप लोगों के सामने आई हूँ। आप लोगों को मालूम है लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद है, हम लोग मिल नहीं सकते आपसे, तो हमने वीडियो का माध्यम चुना है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यूनिट 1 रीडिंग ए पेट्रियोटिज्म इस चैप्टर से। पेट्रियोटिज्म आज जो परिस्थिति है, आज के परिस्थिति में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये कहानी सुनने के बाद आप ये समझ पाएंगे। पेट्रियोटिज्म कहानी के लेखक हैं रामेंद्र कुमार। रामेंद्र कुमार जी बच्चों के लिए कहानी लिखा करते थे और उनकी कहानियाँ जो है बाकी फॉरेन लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया हुआ। Unit 1 Inspiration. Reading A Patriotism. Nanaji, what is patriotism? Asked Ajit. It means going to jail like Gandhiji and Chacha Nehru or dying for your country like Bhagat Singh, explained his sister Naina. Yes, Naina, you are right. But it also means a lot more. To be a patriot, one need not die or go to jail. One can show one's love for one's country in many small ways, Nanaji said. How? By loving its culture and its people. Do you remember, Ajit, on 26th, after the Republic Day parade, a tune was being played? Yes, Nanaji. As soon as the tune started, you stood and continued standing till the end. Do you know what the tune was? I know, Nanaji, Naina said. It was our national anthem, Jana Gana Mana. Good, but do you know why I got up and stood to attention? No, Nanaji. Why? As a mark of respect to the national anthem. And unfortunately, I was the only one to do so. Your father continued to read the paper and your mother went on with her conversation on the phone. Earlier, in the cinema halls, at the end of the movie, the national anthem was played. But it was found that the people used to leave the hall midway, laughing, shouting, and creating a racket. The government then decided to stop playing of the national anthem. The reason why I gave you this example is to explain to you that a person's patriotism can be reflected in simple day-to-day things like his respect for his language, his nation's anthem or flag, and above all, the love for his fellow countrymen. Nanaji, I still don't understand. I thought patriotism was all about dying for one's country or making a big sacrifice. Yes, beta, you're right. It is about big things, but also little ones too. And remember, it is not the battlefield alone which produces patriots. In the battlefield of life too, you will find many martyrs. Okay, let me tell you a story which will help you understand better. Yahoo! Nanaji, tell me a story about dragons and dinosaurs, shouted Ajit. No, Ajit, I'll tell you a story about real people and their real problems, but not today. This Sunday, I'll take you for a picnic to a small village around 100 kilometers from here. We'll spend the day there and return by night. On Sunday, Nanaji, Naina and Ajit started very early for their picnic. They took the first train to the village Himapet. 2.5 hours later,
they found themselves at a tiny, dusty railway station. They got down and stepped outside. A large, well built man wearing a white dhoti and kurta and sporting a huge turban greeted them with folded hands. He led them to a bullock cart and, much to Ajit's delight, lifted and placed him on the cart. The cart trundled on for almost an hour till they finally reached the village. They alighted in front of a large brick house. An elderly man and a woman came out greeting Nanaji and fussing over the kids. They spoke in a dialect which Naina and Ajit found difficult to understand. An hour later, after they had their breakfast, Nanaji took them to a huge peepal tree where there was a platform. They sat down and Nanaji started his story. Around 10 years ago, there was a young man whose name was Akash. He was studying to be a doctor. After he completed his MBBS, he worked hard and won a scholarship to USA. He got his master's degree and decided to come back. Along with him, 10 of his friends had also gone for higher studies to America. They all stayed back, but Akash returned. Akash's father was not very happy with his son's decision. He was very proud that his son had got a foreign degree. He wanted his son to make America his home, earn a lot of money, and finally invite his parents and sister also to settle down in America. But Akash was adamant. My country has spent thousands of rupees in educating me. I have to repay this debt. The only way I can do it is by serving the people here. And moreover, India and its villages need good doctors far more than rich countries like America. What happened, Nanaji? Did Akash come back to India? Yes, child, he did. In the beginning, he worked in a government hospital in the city. A year later, an epidemic broke out in the nearby villages. When Akash learnt about that, he just packed his bags and left. He didn't even inform his parents. Why? Asked Ajit. Because they would have stopped him, silly. In science, I have studied that during epidemics, sometimes the doctors who are treating the patients also die, Nana said. Yes, Nana is right. Anyway, a week later, Akash's father got a postcard from him saying that he was busy treating the patients and that the situation was very grim. But Akash did not mention where exactly he was, fearing that his father would land up and try to drag him back. 2 weeks later, his father received a phone call saying that Akash had been admitted in the city hospital in a serious condition. His parents rushed to see him. He was in a very bad state. He could barely speak. Why are you torturing yourself as well as us, son? His father asked him, while his mother started sobbing. I can't help it, father. I can't bear to see people suffer. Your friends are enjoying life in America, earning lots of money and living in comfort. And look at you here, fighting for your life. I can't understand what you're getting by doing all this. If you don't care about yourself, at least spare a thought for your poor mother. Just see her condition. She has gone half mad worrying about you. Father,
I don't think I'll ever be able to convince you about my actions. All I can say is that I have the satisfaction that I have been able to save so many lives. Forgive me if I have tortured you, but please try to understand that I could not help it. I can't watch people dying all around me and not do anything. After battling for a month, Akash died in his mother's arms. The entire village was there at his cremation, and there was not even one eye which was dry. The villagers decided to pay homage to Akash. They launched a drive to collect donations for building a small hospital in the village. They approached the local MLA, who agreed to organize a hefty donation, thinking that the hospital would be named after him. However, the villagers were adamant. They took the money, built the hospital, and called Akash's parents for the opening ceremony. Akash's father inaugurated the hospital. "Come, I want to show you something," Nanaji said, and taking their hands in his, he led them to a building a few hundred meters behind the peepal tree. They stopped in front of a blue board. "Naina, please read what is written." "Akash Memorial Hospital, in memory of Dr. Akash Rai, who saved this village from death." Naina looked at her grandfather. His eyes were wet with tears. "Nanaji, Akash Rai, but your surname is also Rai. Was he your—" "Yes, my child. He was my son, your mother's elder brother. As a professor of philosophy, I always thought I knew everything about everything, but my son taught me the true essence of the term service and the real meaning of the word patriotism." तो यहाँ यहाँ पर हमारी कहानी में शुरुआत में तीन चरित्र, तीन कैरेक्टर्स है, अजित, नैना और नाना जी। अजित एक छोटा लड़का है, नैना उसकी बहन और नाना जी। तो ये वर्ड जो है पेट्रियोटिज्म, सबसे पहले उसको हम लोग जान लेते हैं इस शब्द का क्या अर्थ है। पेट्रियोटिज्म का अर्थ है देशभक्ति। तो सबसे पहला प्रश्न था अजीत का कि ये देशभक्ति क्या है। तो नैना उसके जवाब में बोलती है कि पेट्रियोटिज्म का अर्थ है देश के लिए अपना जान देना या फिर उसके लिए जेल जाना, जैसे चाचा नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह ने किया है। तो इसके उत्तर में नाना जी बताते हैं कि सिर्फ जेल जाना या देश के लिए अपने प्राण का बलिदान देना ये काफी नहीं है, सिर्फ ये देशभक्ति नहीं है। हर एक इंसान देशभक्ति दिखा सकता है। कैसे? अपने देश के लोगों को प्यार करके, उसका जो कल्चर है उसको सम्मान देके, इस तरह से हम लोग अपना देशभक्ति दिखा सकते हैं। तो नाना जी बोलते हैं, अजीत आपको याद है कुछ दिन पहले 26 जनवरी के समय जब परेड खत्म हो गया, एक धुन बजना शुरू हुआ। तो अजीत ने बोला, हाँ नाना जी मुझे याद है। जैसे धुन बजना शुरू हुआ आप तुरंत खड़े हो गए। तो नाना जी बताते हैं, हाँ बेटा वो धुन किस चीज का धुन है आप जानते हो? तो नैना ने बताया, हाँ नाना जी वो धुन था जन गण मन, हमारे नेशनल एंथम का धुन। तो तब नाना जी बताते हैं, हाँ देखो तो
हम लोग तो सब देख रहे थे परेड, उनमें से हम लोग सिर्फ नाना जी ही खड़े होकर अटेंशन पोजीशन में थे। बाकी उनके माता जी अपने फोन में बिजी थी, उनके पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, तो किसी का ध्यान उस तरफ गया ही नहीं। इसी तरह से पहले मूवीज में मूवी थिएटर्स में नेशनल एंथम बजाया जाता था। मूवी ओवर होने के बाद, मूवी खत्म होने के बाद नेशनल एंथम बजाया जाता था। अभी उसको बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि अभी के लोग क्या करते हैं, जैसे नेशनल एंथम बजता है वो लोग हॉल छोड़ के निकल जाते हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। इसी वजह से सरकार ने ये निर्णय लिया कि अब से नेशनल एंथम बजाना बंद। तो नैना और अजीत जो है और कुछ जानना चाहते थे देशभक्ति के बारे में। तो नाना जी बताते हैं, ठीक है मैं तुमको और भी कुछ बताऊंगा, पर उससे पहले तुमको एक जगह लेकर जाएंगे। इस संडे हम लोग चलेंगे पिकनिक में। पिकनिक में जाएंगे एक गांव का नाम है हिमापत। तो बच्चे तो बहुत खुश। तो ऐसे ही चला आया संडे सुबह जल्दी उठ के तैयार होके वो लोग निकल पड़े हिमापत के लिए। ट्रेन में गए, एक छोटा सा गंदा सा स्टेशन में उतरे। वहां पर जैसे उतरे एक बैलगाड़ी खड़ी हुई थी। बैलगाड़ी में बैठ के वो लोग गए अंदर के एक गांव की तरफ। गांव में जैसे ही वो लोग घर के सामने उतरे, तुरंत एक बुजुर्ग आदमी और उनकी वाइफ आए और उनको स्वागत करके घर में लेकर गए। फिर नाश्ता किए। नाश्ता करने के बाद सब मिलके गए एक पीपल के पेड़ के नीचे। अब वहां पर सुनाने वाले थे नाना जी ये कहानी। अब ये कहानी है देशभक्ति की कहानी। फिर नाना जी शुरू किए। 10 साल पहले आकाश नाम का एक लड़का था। वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, बहुत होशियार था। फिर एमबीबीएस का डिग्री किया, भारत से एमबीबीएस की डिग्री किया। फिर उसने स्कॉलरशिप जीता। कहाँ पढ़ने जाने के लिए? यूएस से, अमेरिका जाएगा वो पढ़ने के लिए। तो फिर वो अमेरिका गया। उसके साथ और भी 10 लड़के गए अमेरिका पढ़ने के लिए। फिर जैसे उसके पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई खत्म थी, वो देश वापस लौटना चाहता था। तो उसी कारण पिताजी को पत्र लिखा कि पिताजी मैं देश में वापस लौटना चाहता हूँ। परंतु पिताजी का मन नहीं था कि आकाश वापस देश में आए। क्यों? क्योंकि उनका मन था कि बेटा मेरा अमेरिका गया है, वहीं पर अच्छा कमाएगा, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करेगा और फिर वहीं अमेरिका में ही माता पिता और बहन को बुला लेगा। पर आकाश तो वैसा लड़का नहीं है। उसने बोला देश ने मेरे लिए हजारों रुपए, लाखों रुपए खर्चा किया है, डॉक्टर बनाने के लिए मुझे स्कॉलरशिप दिया है, और मैं देश का जो ये कर्ज है वो चुकाना चाहता हूँ। ये बोलते हुए वो अकेला वापस आ गया अमेरिका से। पर उसके जो बाकी के 9 फ्रेंड्स थे वो लोग रह गए वहीं पर अमेरिका में। अब यहाँ आने के बाद उसको देश का सेवा करना था, इसीलिए उसने एक सरकारी अस्पताल ज्वाइन किया। सरकारी हॉस्पिटल में ज्वाइन करने के बाद उसका जो पोस्टिंग था वो पोस्टिंग था एक गांव में। फिर अचानक उस गांव में एपिडेमिक फैल गया। बच्चों अभी तो आप लोग जानते हो एपिडेमिक का अर्थ क्या है। इस समय आप लोगों को सबको मालूम है ये शब्द जो है एपिडेमिक, इसका अर्थ क्या है? हाँ एकदम सही बोल। एपिडेमिक का अर्थ है महामारी। अभी महामारी फैला हुआ है, कोरोना वायरस फैला हुआ है। पर तब के समय में महामारी जो है सिर्फ गांव में फैलता था। तब तो इतना एयरपोर्ट मतलब हवाई जहाज से आना जाना नहीं था। जैसे कोरोना वायरस अभी पूरे दुनिया भर में फैल गया है, तब वो जो एपिडेमिक था वो सिर्फ एक गांव में फैला हुआ था। और आकाश ने सब छोड़ के वो एपिडेमिक में फंसे इंसानों को, लोगों को, गांव वालों को मदद करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए सब भूल के उनकी सेवा में लग गया। दिन रात उसने बहुत मेहनत किया, बहुत लोगों को ठीक किया, पर ठीक करते करते वो खुद महामारी का शिकार हो गया। एक दिन अचानक एक चिट्ठी आती है पिताजी के पास। चिट्ठी में लिखा हुआ रहता है कि आकाश की तबीयत बहुत खराब है,
वो महामारी देश के सेवा करते करते वो महामारी के प्रकोप में खुद आ गया है। ये देखते साथ पिताजी, पर उसमें कहीं भी पता नहीं लिखा हुआ था कहाँ पर है आकाश। आकाश ने खुद ये पता नहीं लिखा था। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था जैसे ही पिताजी को मालूम चलेगा वो खींचते हुए आकाश को लेकर आ जाएंगे, इसीलिए आकाश ने अपना पता नहीं दिया। फिर कुछ दिन बाद फिर फोन आता है पिताजी के बाद, आकाश का कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है और उसको सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है। जैसे ही उनको ये खबर मिलती है, आकाश के पिता माता दोनों मिलके चले जाते हैं सिटी हॉस्पिटल और वहां पर आकाश का कंडीशन देख के उसकी माँ बहुत रो पड़ती है। आकाश एक भी बात नहीं कर पाता है। उसका कंडीशन देख के दोनों आंखों में सिर्फ आंसू बहने लगता है। आकाश वो सिर्फ एक ही बात बोलता है, पिताजी आपकी उम्मीदों में मैं खरा नहीं उतर पाया। आप चाहते थे आपका बेटा डॉक्टर बने, बहुत सारा पैसा कमाए, पर मैंने अपना जीवन देश के लिए कुर्बान कर दिया। ऐसे फिर करीबन वो 1 महीना बीमार रहता है और आखिरी में उसकी माँ के हाथ में दम तोड़ देता है। ये था कहानी। उसके बाद क्या हुआ? पूरे गांव के लोग आकाश के क्रियाक्रम में शामिल होते हैं। तब एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसके आंखों में आंसू नहीं आए। सब के सब रो पड़े आकाश के लिए। अब गांव के लोगों ने सोचा आकाश ने इतना कुछ किया है हमारे लिए, चलो हम भी कुछ करते हैं। ये सोच के सारे गांव वाले पैसा इकट्ठा करने लगे। उनका मन था एक हॉस्पिटल बनाने और हॉस्पिटल का नाम देंगे आकाश के ऊपर। और इसी काम के लिए वो लोग गए एक विधायक के पास। विधायक ने सब सुन के पैसा तो दे दिया, पर उनका इच्छा था कि जो हॉस्पिटल बनेगा वो बनेगा उस विधायक के नाम पे। पर गांव वाले भी अपना इरादा बदलने वाले नहीं हैं। वो लोग पैसा इकट्ठा किए, एक हॉस्पिटल बनाए और हॉस्पिटल का नाम रखा डॉक्टर आकाश राय मेमोरियल। इसी बात पे कहानी खत्म होता है नाना जी का। और जहां पर वो लोग उस पीपल के झाड़ के नीचे बैठे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे नाना जी और बच्चे, जस्ट उसी के साइड में था वो हॉस्पिटल। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था डॉक्टर आकाश राय मेमोरियल हॉस्पिटल इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय। आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय हु सेव्ड दिस विलेज फ्रॉम डेथ। तो इसको देखने के बाद नैना क्या नोटिस करती है, देखती है उनके नाना जी के आंखों से आंसू बह रहा है, पानी जैसा बह रहा है। तब नैना ने महसूस किया ये आकाश राय कोई और नहीं, उसके मामा जी है। तब उन्होंने बताया, हाँ नाना जी ने बताया, हाँ बेटा ये आकाश राय कोई और नहीं, तुम्हारे मामा जी है, तुम्हारी माँ के बड़े भाई। उन्होंने और भी बताया, मैंने अपने बेटे से सीखा है देश का सेवा करना क्या होता है, सही मायने में देशभक्ति क्या होता है। इसके साथ मैं आज का लेसन खत्म करती हूँ। थैंक यू।